हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द ऑपरेशंस इन लेथ मशीन। दैट मीन्स विच आर द वेरियस पॉसिबल ऑपरेशंस दैट वी कैन perform over the lathe machine. Okay, so this is an image of lathe machine. So lathe machine is basically used for machining the cylindrical component. So in mechanical engineering, you will find the two basic type of machine, that is lathe machine and milling machine. So lathe machines are used for processing the cylindrical component, whereas the milling machine is used for processing the prismatic component. The cylindrical component will have two dimension, that is length and diameter, whereas the prismatic component will have three dimension, length, breadth and height. So that is a basic difference between lathe and milling. Okay, so here you can see the image of lathe machine. So now this portion is known as headstock. Here you can see the headstock. So headstock carries a gear train for, because you want to rotate the workpiece at different RPM. And why it is important to rotate the workpiece at different RPM? Because the RPM of workpiece depends on the tool material as well as workpiece material. If it is a ductile material, then you will rotate the workpiece at a very high speed, and if it is a hard material, so you have to process it at low RPM. That means there is a requirement of different speed, and that speed reduction or speed enhancement, that is done inside the headstock. Then after his headstock, there is a spindle on which the chuck is mounted. So spindle is a rotary member, and on the spindle there will be a chuck. So the chuck is basically used for clamping the workpiece or for holding the workpiece. The chuck is used. Now there are different types of chuck, like 3-jaw chuck, 4-jaw chuck, okay, depending on the number of jaws. Even there is a type of magnetic chuck also. So depending on its function or depending on the number of jaws, there are various type of chuck, and chuck is basically used for holding the workpiece. After that, there is a tool post for keeping your cutting tools. Here you can use a single point cutting tool, mostly on CNC lathe machine. Sorry, on lathe machine, single point cutting tool is used. So here you can keep either 4 or more than that single point cutting tool over the tool post. Then there is a compound rest. After that, there is a cross slide for giving the feed in vertical direction, that is perpendicular to lathe axis. After that, there is a tailstock. So tailstock is basically used for supporting the long workpiece. Okay, so the long workpiece, or say long cylinder or long shaft, that is supported in between headstock and tailstock. Then there is a hand wheel. After that, there is a guideways. So guideways are basically used for guiding the tailstock. Then the lathe bed is there. Then there is a lead screw. So lead screw is basically used for cutting the threads. So your carriage, that is get engaged with the lead screw, and then you can cut the thread over the cylindrical object. Then there are legs of the lathe machine. Then there is a apron. After that, there is a carriage that can slide over the bed. Then there is a chip pan where you can collect the chip. Chip is nothing but the waste material, or you can say the leftover material after machining. That is nothing but chip. Again, there are various types of chip, like continuous chips, then chips with built up edge, then short chips, discontinuous chip we can say. So these are nothing but various types of chip, and that depends on the RPM on which you are processing the material or type of material of the workpiece. Okay, so these are nothing but different parts of lathe machine. Okay, now we will see the operations that are possible on the lathe machine. So the very first operation, that is facing. So it is the first operation that is done on the workpiece. It is a machining operation which is done to produce the flat surfaces at the end of the workpiece.
This operation is performed by feeding the tool perpendicular to the axis of rotation of the chuck. So here you can see the workpiece is clamped in the chuck and it is rotating, and this is a tool, and this is the direction of feed. So this arrow represents the direction of feed. So basically facing is nothing but the first operation that we perform on the workpiece, and the facing operation is done to get a flat surface, okay, to produce the flat surface at the end of the workpiece. Suppose the end of the workpiece is irregular, in that case we perform the facing operation in order to produce a flat surface at the end. Okay, and here the tool is fed perpendicular to the axis of the lathe. That is very important. So this operation is performed by feeding the tool perpendicular to the axis of rotation of the chuck. Okay, so this is the first operation, that is facing. Next operation, that is known as turning. So in turning operation, the excess material is removed from the surface of the workpiece to produce a cylindrical surface of desired shape and size. During the turning operation, the feed is moved along the axis of rotation of the chuck. It reduces the diameter of cylindrical workpiece. Okay, so turning is a second operation that we can perform over the lathe machine. So basically in turning operation, we can remove the material over the surface, and by removing the material, we are basically reducing the diameter of the workpiece. So here also you can see the workpiece is shown in yellow color and it has two different diameter. This operation is known as step turning operation. So this single job has two different diameter. Okay, so in turning operation, the material is removed over the surface of the workpiece and we are basically decreasing or reducing the diameter of the workpiece, and tool is moving along the axis of the lathe machine or along the axis of the spindle. So in facing operation, the tool is moving perpendicular to the axis of the spindle, whereas in turning operation, the tool is moving along the axis of the spindle. Next operation, that is boring. So the process of removing material from the hole of the workpiece is called as boring. Holes are bored with the help of single point cutting tool. Now here you can see the boring operation. So boring operation is nothing but enlarging the previously drilled hole. मतलब boring में सबसे important condition ये है कि आपके पास पहले से होल ड्रिल हुआ चाहिए, उसके बाद आप उसका डायमीटर इंक्रीज करोगे. दैट इज नथिंग बट बोरिंग ऑपरेशन, एंड दिस ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म ओवर द लेथ मशीन विद द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये होल पहले से इसमें है, उसमें आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पास करना है और इंटरनली मटेरियल रिमूव करते जाना है. So at the end you can you can increase the diameter of that hole, and that is nothing but boring operation. Next operation, drilling. It is a process of making hole in the workpiece by the use of drill. The drill is held in the tailstock and the drilling operation is done by advancing the drill in the workpiece by rotating the handle of the tailstock. Okay, so you can perform drilling operation over lathe machine also. So for that you have to clamp or you have to fix the drill bit in the tailstock, and then the tailstock is advanced towards the workpiece by rotating the handle which is provided on the tailstock, and with that you can perform the drilling operation. So यहाँ पे येलो कलर में आप ये वर्कपीस देख रहे हो और ये ड्रिल टूल है या ड्रिल बिट है जिसको आपको टेलस्टॉक में फिक्स करना है और फिर टेलस्टॉक का हैंडल जो है वो रोटेट करना है. तो ये ड्रिल जो है ये आगे के डायरेक्शन में अंदर जाएगा एंड यू कैन प्रोड्यूस द होल. So drilling is nothing but the operation of making holes over the workpiece. So here you can perform drilling operation over your lathe machine with the help of tailstock by rotating its handle. So here the drill bit that is moving along the axis of the spindle. Now next operation, that is knurling. So it is a process of making indentation on the border of the workpiece. The knurling operation is done to provide a better grip on the job. It is performed by knurling tool. The knurling tool is pressed against the job to perform the knurling operation. So here in this image you can see the knurling operation. So the knurling
knurling operation is done with the help of knurling tool. The knurling tool is pressed over the surface of the workpiece to produce the pattern, and that pattern is useful for gripping the for proper grip, we can say. Okay, so here you can see a knurling tool is there and it is pressed over the workpiece, and due to that what will happen, the whatever the pattern present over the knurling tool, that we can transfer to workpiece. So same pattern we will get over the surface of the workpiece. That is known as knurling operation, and knurling is done for the proper grip of the workpiece. Next operation, that is chamfering. So chamfering is the process of beveling the extreme end of the workpiece. It is done in order to remove the burr, to protect the end of the workpiece from being damaged and to have a better look. So basically in chamfering process, we are removing this material. Here you can see it do not have a sharp edge. So if the material has sharp edge, then there is a lot of chances of breakage. Okay, and in order to remove those chances of breakage, we have to remove the material over the edges, and that can removed with the help of chamfering tool. Okay, so here you can see a chamfering tool is used to remove the material over the edges. Even there are sharp edges and that may damage while handling also. So your workpiece should not have any sharp edges, and that sharp edges can be removed during chamfering operation. So this diagram is showing chamfering operation. The next operation, that is parting off. So it is a process of cutting a workpiece after it has been machined to the required shape and size. Okay, so parting off is nothing but a process of cutting the workpiece into pieces. सो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, एक पार्टिंग टूल है ब्लैक कलर में और येलो कलर में आपका वर्क पीस है. ये पार्टिंग टूल जो है वो आगे एडवांस करते जाएगा. सो ये जो जॉब है उसके दो पीसेस मिल जाएंगे आपको. सो बेसिकली पार्टिंग ऑफ इज़ नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ कटिंग ए वर्क पीस आफ्टर इट हैज़ बीन मशीन टू द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज. सो ये जो है ये मेरा डिज़ायर्ड वर्क पीस है. इतना मिलने के बाद पार्टिंग टूल से यहाँ से ये कट हो जाएगा. So that is known as parting off operation. Next operation, that is grooving. So the process of creating a narrow slot on the workpiece is called as grooving. So here we are creating a narrow slot with the help of grooving tool, and this process is known as grooving operation. So grooving is the process of creating a narrow slot on the workpiece, that is called as grooving. It is also known as recessing or necking. So यहाँ पे आप देख सकते हो नेक फॉर्म किया है. ये completely आपको ब्रेक नहीं करना है, जस्ट एक नैरो स्लॉट क्रिएट करना है. Here you can place the O-rings or say gasket. For this purpose grooving operation is done. So here we are feeding the grooving tool perpendicular to the axis of the lathe machine. So this is grooving operation. Next operation, that is forming. So it is the process in which convex or concave or any irregular surface is formed on the workpiece with the help of forming tool. Forming tool having a required shape is used to perform a forming operation. So here you can see the workpiece that is clamped in the chuck. Okay, and this is an example of forming tool. So this is a forming tool, and that forming tool will have a same shape which is required. Okay, so यहाँ पे आप वर्कपीस को आपको एक ऐसे शेप आपको देना है. ये इस टाइप का शेप आपको वर्कपीस को प्रोवाइड करना है, इसीलिए आपने फॉर्म टूल भी वैसे ही बनाया है. इसीलिए इस टूल को कहते हैं फॉर्म टूल. जो भी शेप आपको चाहिए वही शेप का वो टूल बनेगा, राइट. और फिर आपको टूल को एडवांस करते जाना है तो वही शेप वर्कपीस के ऊपर प्रोड्यूस होगा. सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कॉन्वेक्स, कॉन्केव और एनी इरेगुलर सरफेस इज फॉर्म ऑन द वर्कपीस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मिंग टूल. Forming tool having the required shape is used to perform a forming operation. Okay, so this is forming operation, and here also the feed is given perpendicular to the axis of lathe. The next operation, that is taper turning.
So it is a process in which a conical shape is produced on the workpiece. During taper turning, the feed is set at an angle to the workpiece. Okay. So यहाँ पे आप देख सकते हो ये टूल जो है, ये टूल को एक पर्टिकुलर एंगल दिया है, वो एंगल पे आपको उसे ट्रैवल करते जाना है. So tool is moving simultaneously parallel to the axis as well as perpendicular to it. Is moving along two axes simultaneously. That is known as taper turning operation. The last operation, that is threading, that you can perform over your lathe machine. So the process of making threads on a cylindrical job is called as threading. So here you can see the process of threading. So threading tool or a single point cutting tool is used to produce the thread over a cylindrical object, and the tool is travel along. First the feed is given, and after that the tool is moving along the axis of the lathe, and the thread is produced over the surface of the cylinder. So these are the various operations that we can perform over a lathe machine. So let's summarize it. So the very first operation, that is facing, and it is basically used to produce a flat surface over the end. Then the turning, to remove the material over the surface of the workpiece to reduce its diameter. Next, boring, it is a method of enlarging the diameter of previously drilled hole. Then the drilling, it is a method of producing holes inside the object. After that, knurling. So a special knurling tool is used to generate the pattern over the workpiece for a proper grip. Then chamfering, to remove the sharp edges of the workpiece, we can use a chamfering tool for chamfering purpose. Then parting off, to break the workpiece in two pieces, we can use a parting of tool. Then grooving, so we can produce a narrow neck over the surface of the workpiece by using grooving tool. Then forming, so to get a any kind of shape over the workpiece, we can use a forming tool, and that forming tool will have a same shape which is desired. Then next, taper turning. So here taper turning, we can reduce the diameter and we can produce a conical shape with the help of taper turning operation. And last one is threading. So we can generate the thread over the cylindrical workpiece with the help of either a threading tool or say single point cutting tool. So these are the operations that we can perform over a lathe machine. Thank you so much for watching my video. Okay, now I am introducing a one poll there. You have 5 minutes to solve this poll और आपके पास 5 मिनट ही है रेस्ट के लिए, तो हम 5 मिनट बाद मिलते हैं और एक पोल का आप आंसर दे दीजिए साथ में.
डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ शेपर मशीन के बारे में। शेपर मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले जो शेपर मशीन के बेस के बारे में बात करते हैं, ये सबसे नीचे होता है बेस, जो हमारा कंक्रीट के साथ जुड़ा होता है। ये बेस हमारा कास्ट आयरन का बना होता है क्योंकि इसकी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और गुड जो शॉक एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको कास्ट आयरन का बनाते हैं। इसको कास्टिंग के दौरान बनाया जाता है, कास्टिंग प्रोसेस से इसको बनाया जाता है बेस को। बेस के साथ ही जुड़ा होता है कॉलम। कॉलम के अंदर हमारी सारी जो गियर अरेंजमेंट हैं, पुलीज हैं, कनेक्शंस हैं, जो भी हमारा ड्राइव मैकेनिज्म है या अदर थिंग्स है, वो सारी इस कॉलम के अंदर होती है। तो कॉलम क्या है? एक तरह की हाउसिंग प्रोवाइड करता है सारे मैकेनिज्म को। इस कॉलम के फ्रंट साइड पे गाइडवेज लगी होती हैं जो गाइड करती हैं टेबल को ऊपर और नीचे होने में, और एक गाइडवेज लगी होती है इस कॉलम के बिल्कुल ऊपर जो गाइड करती है रैम को आगे और पीछे जाने के लिए। इसके बिल्कुल सामने बेस के पास एक टेबल सपोर्ट गाइड मैकेनिज्म लगा होता है। यह टेबल स्लाइडिंग सपोर्ट के लिए मैकेनिज्म जो टेबल को सपोर्ट करेगा ऊपर नीचे स्लाइड करते वक्त। ये होता है टेबल। टेबल हमारा एक बॉक्स टाइप का होता है और इसके अंदर यहाँ पे टी स्लॉट कटे होते हैं। टी स्लॉट क्यों कटे होते हैं? ताकि हम इन टी स्लॉट्स के अंदर किसी भी मशीन वाइस को फिट कर सकें और वो अच्छी तरह से इसके ऊपर टाइट हो सके। ये होता है हैंड ट्रैवर्सिंग व्हील जो टेबल को ऊपर और नीचे एलिवेट करने के काम आता है। टेबल के ऊपर हमारा होता है वाइस। वाइस क्या काम करता है? वाइस हमारा जॉब को क्लैंप करने के काम करता है, उसको अच्छी तरह से होल्ड करता है और टाइट करता है। इसके अंदर जो हमारा वाइस होता है, दो जा होते हैं, एक तो फिक्स जा और एक मूवेबल जा। इस हैंडल की हेल्प से हम इस मूवेबल जा की हेल्प से इसके अंदर किसी भी साइज का पीस इसके अंदर हम क्लैंप कर सकते हैं। यहाँ पे होती है कॉलम के ऊपर रैम जो आगे और पीछे की तरफ मूव करती है। इस रैम के आगे एक ये बॉक्स लगा होता है जिसके ऊपर ये स्केल की मार्किंग होती है। हमारी रैम आगे और पीछे की तरफ मूव कर सकती है। रैम के ऊपर लगा होता है रैम क्लैंप। इस रैम क्लैंप की हेल्प से हम रैम की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। तो रैम की पोजीशनिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे लगा होता है टूल हेड, इसको हम बोलते हैं, या फिर वर्टिकल स्लाइड। ये ऊपर और नीचे जा सकता है। इस हैंडल की हेल्प से हम इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं, और ये स्वाइवल भी हो सकता है, मीन्स रोटेट भी कर सकता है किसी भी एंगल पे। तो यहाँ पे स्केल की मार्किंग है, तो उस हिसाब से हम इसको किसी भी एंगल पे रोटेट भी कर सकते हैं। ये है हैंडल फॉर टूल जो फीड हैंडल है, इसको ये फीड देता है ऊपर और नीचे के लिए। इसके सामने लगा होता है क्लैपर बॉक्स। क्लैपर बॉक्स क्या करता है? क्लैपर बॉक्स के आगे टूल होता है जो हमारा टूल पोस्ट पे लगा होता है। तो क्लैपर बॉक्स हेल्प करता है इस टूल को टूल पोस्ट के अंदर फिट होने के लिए। टूल पोस्ट हमारा क्या काम करती है? टूल को अच्छी तरह से हेल्ड करती है और टाइट करती है। ये जो टूल होता है ये होता है हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये बना होता है HSS का, हाई स्पीड स्टील का। तो मेनली जो हाई स्पीड स्टील ही यूज करते हैं, वैसे हाई कार्बन स्टील भी यूज कर लेते हैं। और लास्ट में है ये क्रॉस फीड हैंडल। ये क्रॉस फीड हैंडल हमारा टेबल को क्रॉस जाने में हेल्प करता है। जैसे ये तो है जो हैंडल है ऊपर और नीचे जाने में हेल्प करेगा टेबल को, और ये जो क्रॉस फीड हैंडल है ये उसको क्रॉस जाने में हेल्प करेगा टूल की उस साइड और इस साइड।
तो ये क्रॉस फीड हैंडल भी यहाँ पे टेबल के पास लगा होता है। तो ये है मेन पार्ट्स। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। जब हमारा ये एलिवेटिंग हैंडल घूमता है तो टेबल हमारा ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है। टेबल के ऊपर हमारा मशीन वाइज और वर्क फिक्स होता है, तो टेबल के साथ हमारा ये भी मूव करता है। तो ऊपर और नीचे का मोशन हमें इससे इस एलिवेटिंग हैंडल से मिलता है। और जो हमारा रैम होता है, जब हम मशीन को ऑन करते हैं तो हमारा क्रैंक एंड लीवर जो मैकेनिज्म होता है वो रैम को आगे और पीछे की तरफ धकेलता है, जिससे हमारा रैम आगे और पीछे मूव करता है। रैम के साथ हमारा ये टूल अटैच होता है जो इस वर्क पीस के ऊपर वर्क करता है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है, क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर जिसको हम ड्राइविंग मैकेनिज्म बोलते हैं, वो कैसे काम करता है। तो पहले इसके पार्ट्स देख लेते हैं ड्राइविंग मैकेनिज्म के। इसमें हमारे पास एक क्रैंक होती है और एक ड्राइवर जो गियर होता है। ये एक बेस पे अटैच है। ये है पिन। इस क्रैंक के ऊपर एक पिन लगी होती है जो स्लाइड करती है, जो हमारा एक स्लोटेड लीवर होगा उसके अंदर ये स्लाइड करती है। ये हमारी क्रैंक है जो रोटेट करेगी और उसके साथ ये पिन भी रोटेट करेगी। ये पिन जब रोटेट करेगी तो स्लोटेड लीवर के अंदर स्लाइड भी करेगी। और ये है हमारा ड्राइविंग गियर। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये ड्राइविंग गियर हमारा रोटेट करता है। इसकी हेल्प से हमारा ये क्रैंक रोटेट करता है और क्रैंक की हेल्प से ये जो पिन है ये हमारी रोटेट करती है। पिन के साथ ही हमारा लगा होता है स्लोटेड लीवर। इसको स्लोटेड लीवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बीच में स्लोट कटा होता है। इस स्लोट के अंदर हमारी ये पिन आगे और पीछे इसके अंदर स्लाइड करती है, जिससे हमारा जो ये लीवर है आगे और पीछे की तरफ इस तरह से मोशन करता है। यहाँ पे हमारी है रैम हाउसिंग। ऊपर जो हमारे कॉलम के लगी होती है रैम हाउसिंग, जिसके अंदर हमारी रैम होती है। ये हमारा स्लाइडिंग लिंक होता है जो स्लाइड करता है इस रैम हाउसिंग के अंदर। ये स्लाइडिंग लिंक और ये स्लोटेड लीवर दोनों कनेक्ट होते हैं हमारे एक अनदर लिंक से, इस तरह से। तो ये जो हमारा मैकेनिज्म है वो देखने में इस तरह का लगता है। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम मशीन का स्विच ऑन करते हैं, पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा ड्राइविंग गियर है ये हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर दे। जब ये रोटेट करेगा तो हमारा जो ये क्रैंक है ये भी रोटेट करेगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा इस ड्राइविंग गियर की। तो इस क्रैंक के साथ हमारी ये पिन रोटेट करेगी। देखिए ये पिन इसके साथ रोटेट कर रही है, लेकिन जब ये रोटेट करेगी ये अटैच है इस स्लोटेड लीवर से। तो हमारा स्लोटेड लीवर क्या करेगा, आगे और पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। देखते हैं कैसे। ये इस तरह से हमारा स्टार्ट कर देगा पिन के स्लाइड होने से। तो जो ये लीवर है इस तरह से आगे और पीछे की तरफ मूव करता रहेगा। अब जो ये लिंक है, ये स्लोटेड लीवर हमारा इस लिंक से कनेक्ट है। ये स्लाइडिंग लिंक है जो हमारा इससे कनेक्ट है। तो जब ये आगे और पीछे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, तो जो हमारा ये स्लाइडिंग लिंक है इस रैम हाउसिंग के अंदर ये भी मूव करेगा। तो क्या होगा, दोबारा से देखें। जब हमारा ड्राइविंग गियर रोटेट करेगा तो ये क्रैंक रोटेट करेगी, ये पिन रोटेट करेगी। तो हमारा जो लीवर है इससे कनेक्ट है, तो ये भी हमारा आगे और पीछे की तरफ मूव करेगा। जब ये हमारा मूव करेगा तो ये लिंक जो था वो भी आगे और पीछे जाएगा। अब जो ये लिंक है ये किससे कनेक्ट है, हमारे स्लाइडिंग जो लिंक से। तो हमारा जो स्लाइडिंग लिंक है वो स्लाइडिंग लिंक हमारा स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा रैम हाउसिंग के अंदर। और ये हमारा जो स्लाइडिंग लिंक है ये हमारा कनेक्ट है टूल के साथ। तो टूल को ये मोशन देगा, रैम हमारी जो है उसको मोशन देगा आगे पीछे। रैम हमारी टूल के साथ कनेक्ट है।
तो इस तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन हमें शेपर मशीन के अंदर मिलता है और ये हमारा क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म होता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। दो वीडियोस के बाद हमें पता लगा कि लेथ मशीन में कैसे ऑपरेशन होते हैं, क्या है लेथ मशीन। सेकंड हमें पता लग गया कि शेपर मशीन कैसे काम करती है। और शेपर मशीन में हमने देखा कि भी उन्होंने बताया बहुत ही एनिमेशन के थ्रू बहुत ही अच्छा बताया कि भी कैसे एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है वर्क करता है, कैसे स्लॉट और लीवर मैकेनिज्म वर्क करता है। तो इसमें हमें पता लग गया कि भी ये दोनों बेसिकली पर्पस ये किस काम के लिए यूज होते थे। बेसिकली इट इज यूज फॉर कटिंग पर्पस के लिए हम यूज करते थे, पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर कटिंग के लिए। अब नेक्स्ट है जो अगर हम किसी में होल करना चाहें तो वो कैसे होगा। वो भी एक तरह से कटिंग प्रोसेस ही है, बट उसमें क्या है सिलेंड्रिकल होल आप जनरेट करेंगे, नॉट ए स्लॉट काटेंगे। आपने फिटिंग शॉप में देखा होगा, आपने स्लॉटिंग की होगी जिसमें कि आपको पता लग गया होगा कि भी स्क्वायर होल आपने किए होंगे, पंच किए होंगे होल। बट इन ड्रिलिंग वी जस्ट क्रिएट ए सिलेंड्रिकल होल देयर। हाउ इट इज पॉसिबल वी विल शो इन द वीडियो। होती है वो होल प्रोड्यूस करने के काम आती है किसी भी वर्क पीस के अंदर। तो इसके पार्ट्स को हम समझते हैं। सबसे पहले नीचे होता है बेस। ये जो बेस है ये कास्ट आयरन का हमारा बना होता है, क्योंकि इसकी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और गुड वियर रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए इसको कास्ट आयरन का बनाया जाता है ताकि ये पूरी असेंबली को सपोर्ट कर सके और उसकी जो वाइब्रेशंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके। इस बेस के ऊपर हमारा होता है पिलर। ये पिलर इस बेस के ऊपर मिडल में होता है और ये पिलर हमारा सपोर्ट करता है मोटर और स्पिंडल के हेड को। देखते हैं वो कैसे है। इसके बीच में यहाँ पे होती है स्वाइवल टेबल। ये स्वाइवल टेबल है, ये हमारी टेबल अप और डाउन जा सकती है इस पिलर के ऊपर। ये इसको लॉक करने के लिए है टाइट एक जगह, और ये इसके चारों तरफ घूम भी सकती है। तो हम इस स्वाइवल टेबल को किसी भी एंगल पे, रोटेशनल एंगल पे या फिर ऊपर नीचे, हम इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। जो ये पिलर है इसके जो टॉप साइड है इसके एक तरफ तो होता है हमारे पास मोटर। यहाँ पे मोटर होती है जिसके अंदर शाफ्ट होती है और वो कनेक्ट होती है स्टेप्ड पुली से। स्टेप्ड पुली क्या होती है, जिसके अंदर पुलीज के स्टेप बने होते हैं ताकि हम जो रोटेशनल मोशन है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें। तो ये स्टेप्ड पुली इस शाफ्ट से, मोटर की शाफ्ट से कनेक्ट होती है। इसके दूसरी तरफ होता है स्पिंडल अरेंजमेंट। इसके बीच में यहाँ पे इस हेड के अंदर स्पिंडल होता है। इस स्पिंडल के ऊपर भी स्टेप्ड पुली कनेक्ट होती है। ये हमारी रिवर्स डायरेक्शन में होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये अगर सीधी है तो ये उल्टी होगी। ये दोनों जो स्टेप्ड पुली हैं ये वेलोसिटी रेशो को लेने के काम आती है, मोशन को चेंज करने के काम आती है जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है। और इस स्पिंडल के नीचे कनेक्ट होता है चक। चक क्या होता है, जो हमारे रिवॉल्विंग कटर को होल्ड करता है और उसको अच्छी तरह से टाइट करके पकड़ के रखता है। तो इसको हम बोलते हैं चक। और इस चक के अंदर होता है
ड्रिल बिट। ये जो ड्रिल बिट है ये हमारा रिवॉल्विंग कटर होता है जो होल क्रिएट करने के काम आता है। इस स्वाइवल टेबल के अंदर यहाँ पे टी स्लॉट बने होते हैं, इनके ऊपर हम कोई भी वाइस मशीन वाइस इसके ऊपर हम फिट कर सकते हैं। जैसा हमने पिछली मशीन्स में पढ़ा था जो हमारी मिलिंग मशीन थी, तो यहाँ पर इस टेबल के ऊपर हम इसके ऊपर मशीन वाइस को फिट कर सकते हैं, तो इसलिए स्लॉट बने होते हैं। इन दोनों स्टेप्ड पुली के बीच में हमारी एक बेल्ट लगी होती है। ये होता है हमारा हैंड व्हील, जिसकी रोटेशन की हेल्प से हम इस स्पिंडल को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में जो बेल्ट होती है वो होती है वी बेल्ट। यहाँ पे हम वी बेल्ट यूज करते हैं। जो इसके अंदर कट होते हैं वो वी शेप के अंदर होते हैं, इसलिए इसको वी बेल्ट बोलते हैं। और जो वी बेल्ट है वो फ्लैट बेल्ट से एफिशिएंट होती है मोशन ट्रांसफर करने में, जिससे इन दोनों पुलिस के बीच में स्लिप नहीं होती। तो स्लिपेज नहीं होगी तो ये आसानी से वर्क कर सकेगी और अच्छी ग्रिप बनेगी दोनों स्टेप्ड पुलिस के अंदर। तो ये थे हमारे मेन पार्ट्स थे जो ड्रिलिंग मशीन के। अब इनके हम मोशन को देख लेते हैं कि किस किस तरह से कौन सा पार्ट वर्क करता है। जो हमारा स्वाइवल टेबल है वो ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर सकता है और चारों तरफ ये मूव कर सकता है। तो इसको हम इसकी हैंडल की हेल्प से लॉक कर लेते हैं। तो ये तो है स्वाइवल टेबल ऊपर नीचे, और ये रोटेशनल मोशन किसी भी तरफ जा सकता है, तो हम इसको टाइट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी जो मोटर है उसकी शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। इस शाफ्ट से कनेक्ट है हमारी ये स्टेप्ड पुलीज। ये स्टेप्ड पुली इस स्टेप्ड पुली से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ वी बेल्ट। तो जब ये रोटेट करेगी तो हमारी ये पुली भी रोटेट करेगी। और जो ये स्टेप्ड पुली है ये हमारी कनेक्ट है स्पिंडल से। स्पिंडल हमारा कनेक्ट है चक से और ड्रिल बिट से, तो ये भी रिवॉल्व करना रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही रिवॉल्व करेंगे तो ये कटर हमारा वर्किंग एक्शन में आ जाएगा और वर्क करना ये स्टार्ट कर देगा। इस हैंड व्हील की हेल्प से हम इसको नीचे और ऊपर की तरफ कर सकते हैं जो हमारा कटर है। तो ये है इसके जो मोशन है। अब इसका इंटरनल मैकेनिज्म देखते हैं कि ये जो जब हम हैंड व्हील को रोटेट करते हैं तो ये ऊपर और नीचे किस तरह से जाता है। ड्राइविंग मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास होता है रैक। चक रैक से कनेक्ट होता है और ड्रिल बिट हमारी चक में कनेक्ट होती है। इस रैक के साथ हमारा कनेक्ट होता है पिनियन। पिनियन के ऊपर टीथ कटे होते हैं, रैक के ऊपर भी टीथ कटे होते हैं। ये दोनों टीथ आपस के अंदर मैश करते हैं। इस पिनियन के ऊपर हमारा हैंड व्हील लगा होता है जो हम हैंड से ऊपर या नीचे जो उसको रोटेट करते हैं इस रैक को ऊपर या नीचे करने के हेल्प करता है। तो देखते हैं कैसे काम करता है। जब हमारा हैंड व्हील रोटेट करता है तो ये हमारा जो रैक है वो ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है ड्रिलिंग मशीन का वो काम करता है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। After this video, we have covered our drill machine topic, shaper machine topic and lathe machine topic. और रिमेनिंग मेरे पास अब दो टॉपिक बचे हैं, ग्राइंडिंग मशीन का और एक मिलिंग मशीन का। जो अब हमारा आज 1:30 जो लेक्चर लगेगा 1:30 पे, आगे 2 बजे लगता था, आज लगेगा 1:30 बजे। 1:30 से लेके 2:20 तक जो लेक्चर होगा मेरा 50 मिनट्स का, उसमें जो है हम मिलिंग मशीन और अपनी ग्राइंडिंग मशीन जो ये टॉपिक है वो भी आज कवर कर लेंगे। जिससे क्या है ये जो मेरा सिलेबस का लास्ट टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक हम कोई रिमेनिंग कोई टॉपिक बचा होगा तो उस पर बात कर लेंगे। तो आज जो है 1:30 के लेक्चर में आप सारे प्रेजेंट जरूर दीजिएगा अपनी, तो जिससे क्या है कि आपको ये जो रिमेनिंग दो टॉपिक हैं वो भी कवर हो जाए। तो एक छोटी सी पोल है, आप जल्दी से आंसर देते चले और
उसके बाद मैं इस क्लास को एंड कर दूंगा। ओके सर।